ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈਡੈਂਟਡ ਲਾਈਗੈਂਡ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੋਨੋਡੈਂਟਡ ਲਾਈਗੈਂਡ, ਕੀ ਹੈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ, ਕੀ ਹੈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕੰਪਾਊਂਡ। ਕੀ ਹੈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬੇਟਾ? ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ। ਇਹ ਐਨਾਇਨਿਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਜਿਹੜੇ ਐਨਾਇਨਿਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਟਾਇਨਿਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਨਿਊਟਰਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਿਸ, ਬਿਸ, ਡਾਈਆਕਸਲੇਟੋ, डाई एक्वा क्रोमेट 3 आयन। ठीक है बेटा, इनू प्रिपेयर करना है। तो दिस इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज द कंपाउंड फॉर्म बाय द ट्रांजिशन मेटल एटम और आयन और any metal or ion which having vacant d orbital in the valence shell or penultimate shell, vacant d orbital in the penultimate shell, and then they will accept electron from the ligands. A ligand may be neutral species like water, ammonia, and may be negatively charged like ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੀ ਲਿੱਤੀ ਆਕਜ਼ਲੇਟ ਆਇਨ ਦੀ। ਬੇਟਾ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇਜ਼ ਦ ਕੰਪਾਊਂਡ ਫਾਰਮ ਬਾय ਦ transition metal atom or ion or any metal or atom or ion which having vacant orbital in the penultimate shell and ligands which will form coordinate bond with the transition metal atom or ion or any other metal atom or ion which having vacant d orbital in the penultimate shell. So obviously coordination compound the definition in broad sense ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ compound which are formed when ligands form coordinate bond with the respective metal or metal ion। ਬੇਟਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਡਬਲ ਸਾਲਟ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ। ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡ and double salt। ਬੇਟਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹੀ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਡਾਈਕੋਮੇਟ ਲੈਣਾ, ਆਕਜ਼ੈਲਿਕ ਐਸਿਡ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਆ, ਸੇ ਇਨ ਜਨਰਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ K2Cr2O7 ਪਲੱਸ ਆਕਜ਼ੈਲਿਕ ਐਸਿਡ ਮੈਂ ਲਿਆ। ਇਨ ਨਟ ਸ਼ੈਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਹੀਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਪੀਸੀ ਆ ਗਈ ਸੇ K ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਪੀਸੀ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਆਹ ਸਪੀਸੀ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਇਹ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਡਾਈਕੋਮੇਟ ਆਕਜ਼ੈਲਿਕ ਐਸਿਡ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰੋਗੇ? ਦਿਸ ਵਨ ਐਨਾਇਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਲ ਟੂਗੇਦਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਲ ਟੂਗੇਦਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਲ ਟੂਗੇਦਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਹਦੇ ਕੰਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਤੋਂ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਡਾਈਕੋਮੇਟ ਤੋਂ ਅਤੇ ਆਕਜ਼ੈਲਿਕ ਐਸਿਡ ਤੋਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡਬਲ ਸਾਲਟ 'ਤੇ ਆਈਏ ਬੇਟਾ, ਡਬਲ ਸਾਲਟ ਜਿੱਦਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮੋਹਰ ਸਾਲਟ। ਡਬਲ ਸਾਲਟ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੋਹਰ ਸਾਲਟ। ਮੋਹਰ ਸਾਲਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਬੇਟਾ, ਡਬਲ ਸਾਲਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ? ਹਾਂ, ਡਬਲ ਸਾਲਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੋਹਰ ਸਾਲਟ ferrous sulfate, ammonium sulfate, 6 water molecule hexahydrate। ठीक है जी, ferrous sulfate, ammonium sulfate, 6H2O। तो बेटा ये कितों मिलके बनया? ferrous sulfate प्लस ammonium sulfate, ferrous sulfate प्लस ammonium sulfate। ਹੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵਾਟਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕੂਲ ਹੋਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਰਸ ਸਲਫੇਟ, ਅਮੋਨੀਅਮ ਸਲਫੇਟ, 6 ਵਾਟਰ ਆ ਗਿਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੋਹਰ ਸਾਲਟ ਆ ਗਿਆ। ਬੇਟਾ ਇਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼, ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼
डबल साल्ट ਦੀਆਂ सेम हो गई, अलम भी कह दें अलम है ना, फटकड़ी वो भी डबल साल्ट आ, ਉਹਦੀਆਂ प्रॉपर्टी सेम हो गई और रिटेन रहनिया एज दैट ऑफ जिन्ना ਜਿਹੜੇ कंस्टीट्यूएंट तो मिलकर बने फेरस सल्फेट तो अमोनीयम सल्फेट तो मिलकर बनया, तो ਇਹਦੀਆਂ प्रॉपर्टीज़ भी सेम रहनिया। ये डबल साल्ट के फेरस सल्फेट अमोनीयम सल्फेट के जो आप साल्ट एनालिसिस मिक्सचर एनालिसिस करते हैं तो फेरस आयन का रिएक्शन देगा थर्ड ग्रुप, सल्फेट का बेस एसिड रेडिकल अमोनीयम आयन का सिक्स ग्रुप के। सो प्रॉपर्टी रिटेन रहनी है। इन्ना क्लीयर बेटा। हुण असी बेटा अगे करना इहदा कि असी हजे प्रैपरेशन करनी है कि टू प्रपेयर ए प्योर सैंपल ऑफ सिस बिस ऑक्सलेटो डाई एक्वाक्रोमेट 3 आयन। तो बेटा ये लिए की सानू थ्योरी की होनी चाहिए और इसका प्रोसीजर की होना चाहिए, वही हुण मैं गल करन लगी हाँ। बेटा थ्योरी की है, थ्योरी सिस bisoxalato diechochromate 3 complex ion is obtained by bombing a dry mixture of potassium dichromate and oxalic acid in the presence of very small amount of water. Water इत्थे आपां किहड़ा यूज़ करना है, distilled water. A black purple colored viscous liquid is formed which on trituration बेटा मैं तुहानूं करके दिखाऊंगी जो एक्सपैरीमेंट कल इनू परफॉर्म करके दिखाना है। तो बेटा जो असीं इनू हिलाई जाने स्पैचुला नाल हिलाई जाने एल्कोहल दे विच जिहड़ा सॉलिड है विस्कस सॉलिड जिद्दां लुक की तरह हो जाता है, तो उन्होंने असीं मतलब वो जिहड़ी है फ्लूइडिटी बिल्कुल नामात्र हो जाती है। तो ट्राइचुरेशन जो करते हैं विद एथाइल अल्कोहल तो फॉर्म की करता ब्लैक पर्पल ग्रैनुलर क्रिस्टल्स ऑफ द सिस आइसोमर। क्लीयर है बेटा। दिस इज़ द थ्योरी। इनू असी लैफ्ट हैंड साइड की बजाय राइट हैंड साइड पर पैन वाली साइड लिखना। एक्सपैरीमेंट तो बाद आप लिखना आ कैमिकल रिक्वायर्ड ऑपरेटर्स दैन ये थ्योरी, फिर ब्रीफ प्रोसीजर जोड़ा कि पास्ट टेंस लिखना है, फिर तुसी जनरल कैलकुलेशनस लिखनी है। तो लैफ्ट हैंड साइड पर वाइट पेपर पर तुसी एक्सपैरीमेंट कैमिकल रिक्वायर्ड कैमिकल इक्वेशन स्टीरियोकेमिस्ट्री शेप और ज्योमैट्री जी कि मैं तुहानूं ड्रॉ कर चुकी हाँ ऑलरेडी, और फिर ऑब्जर्वेशन, फिर उस तो बाद कैलकुलेशन इफ एनी एंड दैन रिजल्ट। क्लीयर है बेटा। हुण बेटा कैमिकल रिक्वायर्ड की है, कैमिकल रिक्वायर्ड इस एक्सपैरीमेंट कैमिकल रिक्वायर्ड की है नंबर 1 पोटाशियम डाइक्रोमेट सॉलिड ऑब्वियसली बेटा ऑरेंज कलर का सॉलिड होंदा K2Cr2O7 ऑरेंज कलर का सॉलिड होएगा। इनू असी 2 ग्राम लेना बेटा। ऑक्सैलिक एसिड बेटा वाइट कलर का ही होएगा सॉलिड, उन्होंने आप 6 ग्राम लेना। ऑक्सैलिक एसिड क्रिस्टल असी किन्ने लैने हैं सॉलिड, इत्थे सॉलिड ही है बेटा। पोटाशियम डाइक्रोमेट की है सॉलिड ही है। हुण असी ऑक्सैलिक एसिड क्रिस्टल किन्ने लैने हैं 6 ग्राम। थर्ड बेटा अल्कोहल लैनी है इथाइल अल्कोहल ट्राइचुरेशन ली दैट इज़ अबाउट 50 ml। क्लीयर बेटा। इथाइल अल्कोहल कितनी लेनी है, दीज आर द रिक्वायरमेंट्स। केमिकल रिक्वायर्ड पोटाशियम डाइक्रोमेट 2 ग्राम, ऑक्सैलिक एसिड क्रिस्टल 6 ग्राम, इथाइल अल्कोहल 50 ml। क्लीयर है बेटा। हुण असी केमिकल इक्वेशन लिखनी है। क्लीयर बेटा। हुण असी लिखनी है केमिकल इक्वेशन। असी की लिता बेटा पोटाशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 प्लस 7 मॉलिक्यूल ऑक्सैलिक एसिड दे बेटा। ठीक है, हीट करांगे इन इथाइल अल्कोहल मीडियम, बुक च नहीं लिखा तुसी लिखोगे तो साढ़े को आ जाएगा बेटा 2K पॉजिटिव सोल्यूशन मिल जाएगा सानू। आपा क्योंकि एनाइन क्या प्रिपेयर करना है ना, तो साढ़े को नाल आ जाएगा 2C2O4 2 नेगेटिव 2H2O ट्वाइस -1। क्लियर बेटा। दोबारा देख लेंगे हैं कि पोटाशियम डाइक्रोमेट प्लस 7 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड जोड़ा बेटा डाईहाइड्रेट लेना, डाईहाइड्रेट
ठीक है बेटा, हीट किया, इथाइल अल्कोहल डालिया, ठीक है बेटा। ਇਹਦੇ 'ਚ ट्राइचूरेट करना तो साढ़े को की आ गया 2K पॉजिटिव प्लस 2 ਜਿਹੜਾ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਸੈਂਪਲ ਆ ਸਕੁਏਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਸਟਾਰਟ ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ C2O4 ਟਵਾਈਸ H2O ਦਾ ਟਵਾਈਸ ਮਾਈਨਸ ਤੇ ਨਾਲ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਨਾਲ ਆਏਗਾ ਵਾਟਰ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, 6 ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਐਂਡ 17 ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਇੰਨਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਥਾਈਲ ਪੂਰਾ ਇੱਥੇ, ठीक है बेटा। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਥੋਰੈਟੀਕਲੀ ਕੱਢਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋਰੈਟੀਕਲ ਜੀਲਡ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਛੱਡਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਥੋਰੈਟੀਕਲ ਜੀਲਡ ਕੱਢਣੀ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਨਿਟ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਣਾ। ਕਲੀਅਰ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਡਾਈਕੋਮੇਟ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ 2 ਗ੍ਰਾਮ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ 294 ਬੇਟਾ, ਜੇ 294 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ 606 करके देख लेना ऐड, 2 यूनिट है या 1 यूनिट है तुसी देखना, ठीक है। उतो तुसी ये थोरैटिकल जील्ड इसकी कट देनी है। क्लीयर बेटा? प्रोसीजर की है, प्रोसीजर वो देखोगे तो प्रोसीजर की है कि तुसी सानू वैसे चाहिए कि चाइना डिश, चाइना डिश के लिए वायर गॉज जरूरी है। मैं थोड़ा दसनी है जो लिखते हैं कई बार थोरैटिकली वो असी प्रैक्टिकली नहीं करते। क्लीयर है बेटा? सो प्रोसीजर की है, प्लेस 6 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड क्रिस्टल एंड 2 ग्राम ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट क्रिस्टल्स इन ए ड्राई मोर्टार, then grind the mixture gently till the reactants are intimately mix हो गए तो रिएक्शन शुरू हो जाएगा उन्होंने विचों, ठीक है जी। बबलिंग आउट होनी शुरू होगी। टेक ए चाइना डिश, ठीक है, ग्राइंड कर लिया और इनू पूरे मिक्सचर नू चाइना डिश के बिल्कुल सेंटर दे विच पावांगे। टेक ए चाइना डिश एंड मॉइस्टन इट विद वाटर, इनू गिला थोड़ा जिहा कर लेना, पानी नहीं रहन देना, मॉइस्टन करना। बाकी जिहड़ा पानी है ड्रेन कर देना, ड्रेन अवे द एक्सेस ऑफ वाटर। इत्थे वाटर असी टैप वाटर भी लै सकते हैं, ठीक है। इंट्रोड्यूस द मिक्सचर इन एट द सेंटर ऑफ द चाइना डिश इन द फॉर्म ऑफ ए हीप। बेटा उत्थे जो रखांगे तो इत्थे इन्होंने कहा कवर द चाइना डिश विद क्लॉक ग्लास, असी कवर नहीं करना, एज इट इज़ स्पैचुला ना इनू हिलाना, ट्राइचूरेट करना शुरू कर देना, स्टर करना शुरू कर देना। आफ्टर फ्यू मिनट बाइगस रिएक्शन सेटअप और बबलिंग आउट होगी, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, यू नो। सेटअप इन अकम्पनीड विद, मतलब रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक विद फ्रोजिंग ड्यू टू एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। ए डार्क कलर्ड विस्कस लिक्विड इज फॉर्म्ड। ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ब्लैक लगना बेटे वो है बट पर्पल कलर का। इमीडिएटली पोर अबाउट 20 ml ऑफ इथानॉल ओवर दिस लिक्विड। बेटा जो इनू आप करना है ना, कोई फ्लेम फ्लूम नेड़े नहीं होनी चाहिए अल्कोहल के, तो इथानॉल पा देंगे इस लिक्विड तो उन्होंने ट्राइचूरेट करांगे, हिलावांगे, स्पैचुला ना हिलाई जाना बेटा, वो फिर सॉलिड चेंज होगा, ठीक है, अंटिल एक सॉलिड ना बन जाए, है ना, बन जाए। जो सॉलिडिफिकेशन जे नहीं अचीव हुई फिर असी उस लिक्विड नू अल्कोहल नू डिकेंट ऑफ कर देना, नितार देना, कट देना चाइना डिश चो। दैन ऐड टू इट एनदर लॉट ऑफ 20 ml ऑफ इथानॉल, ठीक है। फिर उन्होंने थोड़ा बाम करना, बाम आप ट्राईपॉड स्टैंड ते रख के बर्नर ऑन करके वो उपर वायर गॉज रख के फिर चाइना डिश रखनी है, ठीक है। उन्होंने एक टोंग दे नाल पकड़ना, थोड़ा दिखाना है असी, तो फिर ट्राइचूरेशन नू हिलाने नू कंटिन्यू रखना है। प्रोडक्ट जिहड़ा ग्रैनुलर क्रिस्टल की फॉर्म च बन जाएगा एंड क्रिस्टल विल लुक ब्लैक इन डिफ्यूज डे लाइट एंड डीप पर्पल इन आर्टिफिशियल लाइट। सो फिल्टर द क्रिस्टल यूजिंग बुकनर फनल, ड्राई एंड रिकॉर्ड द जील्ड। बेटा ये की है ऑब्जर्वेशन आप कल करांगे, कैलकुलेशन कल करांगे, नाल ही कल मैं थानू परफॉर्म करके दिखाऊंगी, ठीक है बेटा। ये है कि बेटा कि ऑब्जर्वेशनस भी आप करनी है, क्योंकि जिदा आप वे करना है पोटाशियम डाइक्रोमेट, ऑक्सैलिक एसिड, डाईहाइड्रेट सॉलिड, तो फिर उस तो बाद एम्प्टी वॉच ग्लास फिर लैनी है ना, वो सारी गल्लां आप कल करांगे। ओके बेटा।